I'm Okay. from Okay. I'm from Mysore Road, sir. Valmiki Nagar, Mysore Road. Okay. It's in Bangalore, right? Valmiki Nagar. Yes. Oh, Yes, sir. cool, cool. So you currently you are in second PUC, right? Second year BCom, sir. Second year BCom. Okay, sorry. Yeah. Okay. Okay, Kausar. We are waiting few more people. Be with us, inshallah. We are going to Okay, start very soon the session. Hope you know what is this Zoom meeting is all about. yes, sir. Okay. Are you aware of it, or you still Yeah, you don't I know? just yesterday night I got to know about this, sir. Man sent all these details, sir. So I Okay, thought fine. to join Okay. and see what. Okay, please, if you can share your quickly, if you can share your friends within your WhatsApp, can you please call if you have any of your friends so that they can have benefit with this. Okay, sir. Okay, अच्छा. Let me introduce myself first. Assalamu alaikum. मेरा नाम मुज़क्किर अली खान. I'm a engineering graduate. Like I have completed my engineering in electronics and communication in the year 2012. And after that, I was working for an IT company. I worked for around 8 years. And उसके बाद मैं है ना alhamdulillah I joined LLB. Now I'm a law student. I'm in final year law. Okay. So apart from this, I am into social activities. I'm a social activist. I am with an NGO called Unique Foundation. So alhamdulillah, we are working from past 9 years with the Unique Foundation in the field of education, in the field of empowering our jobless youths, skilling. I mean, enhancing skills of the jobless youths who have not completed their graduation, like dropouts. You can call them as dropouts, SSLC or PUC passed. And also alhamdulillah, we Unique Foundation is working in the field of legal aid to the people who are in problem. जो भी लीगली जिसे भी प्रॉब्लम रहता है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एनजीओ है वो काम करती हुई आ रही है. So this is my introduction. I would like to ask Mr. Abrar to please introduce yourself. He will be our speaker who will speak about the topic competitive exams. Can you please introduce yourself, Mr. Abrar? Ji, Alhamdulillah. My name is Syed Abrar. So I'm a UPSC trainer for I take subject CSAT mental ability जो आपका subject है जो paper 2 में आता है. I handle paper 2 wholly. Most probably my subject is like mental ability, उसे general mathematics बोलते हैं या फिर simple terms में सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं वो सब्जेक्ट इज माय एक्सपर्टाइज. So from past 5.5-6 years, I've been teaching for UPSC aspirants from all over Karnataka. And later on, I moved to Delhi. और उधर भी we have a lot of students who take guidance from us to crack their civil service. Not only civil service, but also state PSCs, state civil services like Karnataka KPSC. जैसे वगैरह जो भी है ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए we train students. जितना हमारा नॉलेज है तो उसके हिसाब से we train students free of cost भी करते हैं with fees भी करते हैं. The only aim is to give a government or a private job for the Muslim youth. That is the only aim. So today we are here to discuss about the how competitive exams should be cleared and how our people, our community people should approach the competitive examination and get get passed, placed in various government departments that might be central or the state. So I am here to ask to clear your doubts. So Muzakkir bhai, you can ask me. Okay, just a minute. Okay, thank you so much. ठीक है. इंशाल्लाह let's start quick start क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ 15 या 20 minutes हैं.
So, Abrar bhai, Abrar sir, I would like to ask you, what do you mean by competitive exams? See, in the present world, there are two kinds of jobs. Either you can have a private job. Private job includes working for private companies or a business, or owning a business, or doing something which is related, which is not related to any company, which is related to yourself, self-employed बोलते हैं ना. That is a private job. And a government sector. Government sector में अगर तुम एक काम करते हैं, if you are working, it is not a work, it is a service. You are giving a service. Working in army, Okay. working in a police, working in paramilitary, that is a service. Service plus work, that is the government. Government is it is giving this to the people and getting the benefit, the salary, minimum salary from that service. This is called as a simple government job. A competitive exam से जो government competitive exams होता है उससे अगर आप लिखते हैं तो you'll directly go to public services, that is government jobs. You'll get to jobs in various government departments. So this is government job, a simple definition of a government job. Okay, ठीक है. अच्छा, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब्स में डिफरेंस क्या है? गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब जैसे कि आसमान और जमीन है. The same difference is there for private and government job. Government job, if you take instance of a government job is a safe job. So you'll be having pensions, PA, TA, DA, HRA, housing allowance, insurance, health insurance. तो ऐसा बहुत से फूड सिक्योरिटी वो सब आपके लिए वो क्या होता है, वो they'll give you full, they need the service from you, so they'll give everything possible facility for you. मेडिकल फैसिलिटी देता है, इंश्योरेंस देता है, आपको फंड्स देते हैं, आपको लोन्स देता है बैंक्स में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में. whereas private job is not as much secure as a government job. Anybody can remove if you are unfit, if you don't work properly, if they find something which is not beneficial for their organization, they'll easily remove you. So that is very unsecured. So government job, kahi bhi jao, in whichever country you go, government job is always a secured and the best talent seeking platform. Where aapka, you can showcase your talent, you can serve the community, and you can easily earn and a lot of money there. Okay, अच्छा, इसमें गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स. अगर प्राइवेट जॉब्स के पास अगर प्रोजेक्ट्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक प्रोजेक्ट्स उनके जिंदा हैं तो उनका काम चलता रहेगा. एक बार उनका प्रोजेक्ट अगर रुक गया तो कभी भी उनको निकाल सकते हैं, राइट? सो दे इवन प्राइवेट कंपनीज हैव देयर, उनका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसमें 2 या 3 महीना का नोटिस पीरियड सर्व करके ऑटोमेटिकली वो निकाल देते हैं. सो लेकिन वही गवर्नमेंट जॉब को अगर हम सामने रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर्ड रहेगा. जॉब जब तक जॉब करेंगे तब तक सिक्योरिटी भी रहती है. उसके बाद वंस दे कंप्लीट देयर रिटायरमेंट एज के बाद भी उनको पेंशन आता रहेगा. सो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब के लिए. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबरार सर आपके पास, कौन कौन से अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, अलग वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो if you take central job, there are central में various departments है, जैसे कि रेलवेज है, आपका पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, आपका एसएससी हो गया. एसएससी में भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी यू हैव वेरियस टाइप ऑफ, लाइक फॉर योर डिग्री, आप अगर डिग्री करके है तो CGL बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम. तो आपके वेरियस बेस्ड ऑन योर डिग्री एंड दे विल कंडक्ट ए टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं. अगर टेस्ट में इफ यू क्वालिफाई द मार्क्स, मिनिमम मार्क्स लिया तो यू विल गेट प्लेस्ड इन various departments. उधर आपको लिए while filling form they will ask you choices, for example income tax department, commercial tax department, या या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. वाटर बोर्ड होता है, पोल्यूशन बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड होता है. ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में they will be asking your preferences. अगर आप उधर सिंपल एक एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, आप क्लियर कर दिया तो you'll place in that जब वैसे ही सेंट्रल में you'll be having Union Public Service Commission, that is UPSC exam for IAS, IPS, IFS.
इफ यू गेट क्लियर इन इट इज इंडियाज टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, अगर आप क्लियर कर लिया तो योर लाइफ, योर फैमिली लाइफ एंड योर कमिंग जनरेशन लाइफ विल बी वेरी मच सिक्योर्ड, बिकॉज फॉर आईएएस ऑफिसर या फिर आईपीएस ऑफिसर को निकालने के लिए ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर। अगर कुछ भी होता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है, उसके खिलाफ कुछ क्या बोलते हैं केसेस होते हैं, कुछ भी होता है, तो ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव। हियर द लोकल governors from the politician, they can file a complaint. That's it. Only the president will look into the matter, and finally he will remove, he will impeach the officer from that level. So UPSC category एकदम उसका level ही अलग है. Coming to state level examination, for example कर्नाटका गवर्नमेंट एक KPSC है, उसमें you will be having various departments, जैसे कि हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, या फिर लेबर इंस्पेक्टर हो गया, टैक्स असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट्स है। एजुकेशन बोर्ड, कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी हो गया, हेल्थ सेक्टर होगा, इसमें वेरियस, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अंदाज के ऊपर बोलना तो यू विल बी हैविंग केपीएससी में सिर्फ 14 से 15,000 पोस्ट फिल करना। तो 2017 में लास्ट कॉल किया था, फिर अब कॉल किए हैं 2022 में कॉल किए हैं, और 22 में ही अराउंड अभी 2000 पोस्ट फिल करना अगर को, देयर इज वन सर्कुलर फॉर केपीएससी। तो दिस आर द वेरियस स्टेट में भी विल बी हैविंग स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर होंगे, पुलिस कांस्टेबल्स होंगे, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स हो गए स्टेट के, उसको छोड़ा तो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत या तालुक पंचायत के एग्जाम्स होंगे, सबका देयर विल बी हैविंग द सेम पैटर्न, सेम एग्जाम पैटर्न, बट a little bit difficult, कहीं पर इजी होता है, कहीं पर डिफिकल्ट होता है, बट द डिफरेंस इज स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स के लिए देयर इज अ वन कॉमन प्लेटफॉर्म। द माइंडसेट इज द एग्जामिनर इज टेस्टिंग आपका क्या एवरेज नॉलेज चेक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक टेबल फैन हो गया, टेबल फैन के बारे में आप क्या जानते हैं, वो कितने, उसका मोटर क्या है, कितने एचपी का मोटर है, वो कैसा, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट रोटेट्स, तो उसको क्या है, कौन सा, कितना वोल्टेज का इलेक्ट्रिक स्पीड चाहिए। तो एवरेज नॉलेज, दे विल नॉट बी आस्किंग फुल स्पेसिफिकेशन, नहीं पूछते, स्पेसिफिकेशन पूछे तो वी मस्ट डू पीएचडी इन एवरी सब्जेक्ट। तो देयर विल बी अराउंड 9 to 11 सब्जेक्ट फॉर जनरल स्टडीज फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो सबका एवरेज नॉलेज आपको उसका गेन करना है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड विल गो टू द नेक्स्ट क्विक क्वेश्चन। अभी हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है। अच्छा, सैलरीज की जब बात आती है, सैलरीज कैसे रहती हैं इसके इंशाल्लाह, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के? देखो, वैसे तो सैलरी ऑफ आईएएस ऑफिसर इज 56,000 रुपीज ओनली, बट द अलाउंसेस, उनको घर देता है, उनको 2 एकर्स का घर देता है, दे विल बी हैविंग कार, व्हीकल, ट्रैवल अलाउंस, कहीं पर भी ट्रैवल ऑल ओवर इंडिया फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी माफ है, फोन बिल माफ है, और उनको घर में काम करने के लिए उनको दे विल गिव सम लेबर्स टू वर्क इन देयर होम्स। तो वैसा अलाउंस को लेकर उनका अलाउंस, इफ वी कैलकुलेट, विल बी हैविंग अलाउंस, आईएएस ऑफिसर विल बी हैविंग एन अलाउंस ऑफ 2 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से 2 लाख तक उनको अलाउंस मिलता है। बट वेराज इन स्टेट, इफ यू कम टू स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर, हमारे कर्नाटका का पीएसआई जो भी है, उसका सैलरी अराउंड 52,000 रुपीज है प्रेजेंट, 52,000 रुपीज। तो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब्स। इफ नॉर्मल क्लर्क, बैंक क्लर्क का सैलरी देखते हैं 24,000 रुपीज है प्रेजेंट बैंक क्लर्क के लिए। तो सैलरीज एंड ऑल फॉर स्टेट के लिए 25 एंड अबव है, 25 एंड प्लस है फॉर एवरेज, और सेंट्रल को गए तो 30 एंड प्लस है। बट ऑलवेज दैट salaries and everything depends on the kind of job he is doing. If you take army people working in military, army force, military या navy या air force में काम, उनके लिए सैलरी ज्यादा होता है, क्यों? Because they will be having high risk of their life. तो वैसे ही इफ यू सी ए गवर्नमेंट डॉक्टर, एवरेज गवर्नमेंट डॉक्टर एमबीबीएस जो करके है, उसका एवरेज सैलरी है 35,000 रुपीज। तो दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी आर ऑप्टिंग। बट whereas there is not much difference between state and central job. अगर स्टेट का जॉब है तो भी ऑलमोस्ट अराउंड 25 प्लस सैलरी स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ आपके लिए, और स्टेट का सेंट्रल का स्टार्टिंग सैलरी 30 प्लस ऑन एन एवरेज मिल सकता है। ओके, अच्छा, अभी एक जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं
उनसे एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि बीए, बीएससी या बीकॉम, इसमें कौन सा बेस्ट डिग्री है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? क्वालिफाइंग एग्जाम, क्वालिफाइंग किसके लिए, कौन सी डिग्री के लिए बेस्ट है करके पूछ रहे हैं। See, again, if you talk about the degree, which is the best degree, अगर तुम्हें यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई थिंक बीए और बीएससी इज द बेस्ट डिग्री. अगर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स आप लेते हैं तो यू विल बी कवरिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी. जैसा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में क्या होता है, तुम्हें हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कर्नाटका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कवर हो जाता है उधर. तो यू विल बी हैविंग एन अपर हैंड ऑन दैट. इफ यू टॉक अबाउट बीएससी, अगर बीएससी लेते हैं तो साइंस का फॉर एग्जांपल आपका जो है बायोलॉजी रहते हैं, उसमें देयर विल बी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, जनरल केमिस्ट्री हो गया. So if you study those subjects, you'll be having upper hand for clearing UPSC. So that again depends on your interest. आप क्या कर सकते हैं, आप कौन सा जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं. If you see in America, people they'll क्या करते हैं तो बच्चों को 6-7 ईयर के बाद ही उनको they'll decide their future. अगर डॉक्टर पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़, तो वो फील्ड में जा. बट हमारा वैसा नहीं है. We need to study. हमारा 17-18 साल तक we need to common thing. Later on we need to choose our path. We are lagging in that stage. So अगर if you are qualified, if you are willing to go for UPSC या KPSC, तो BA is the best degree. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, नेक्स्ट है कि एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया क्या है? फॉर एलिजिबिलिटी फॉर देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 28 इयर्स है. जनरल कैटेगरी फॉर जनरल मेरिट स्टूडेंट्स, जैसा कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है, तो उनके लिए 28 इयर्स है. और फॉर मुस्लिम्स ओबीसी के लिए वी हैव 35 इयर्स तक हमारा एज रिलैक्सेशन है. तो SC ST वाले को भी 35 इयर्स है. प्लस इफ यू हैव इनकम सर्टिफिकेट या फिर 2B का जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर वो होगा तो प्लस 3 इयर्स तुम्हारा एज रिलैक्सेशन मिलता है. दैट मीन्स यू कैन राइट एग्जाम टिल 38 इयर्स ऑफ एज. बोथ सेंट्रल और स्टेट के लिए दोनों सेम है. इफ यू आर ए मुस्लिम और या ओबीसी कैंडिडेट, 35 इयर्स प्लस केस या इनकम सर्टिफिकेट रहा तो 38 इयर्स तक भी आप एग्जाम्स लिख सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल दोनों भी. थैंक यू सो मच. और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का? स्टेट और टॉकिंग अबाउट ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, अगर ग्रुप ए छोड़ डाले तो यूपीएससी और केपीएससी छोड़ डाले तो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स 95% एग्जाम्स का पैटर्न सेम रहता है. दैट मीन्स जनरल स्टडीज रहता है. जनरल स्टडीज के अंदर 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स. दैट मीन्स 200 क्वेश्चंस. तो 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का एक पेपर रहता है, वो उसको जनरल स्टडीज बोलते हैं. जनरल स्टडीज के अंदर यू विल बी हैविंग जनरल इंग्लिश, जनरल कंप्यूटर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और जनरल मैथ्स या मेंटल एबिलिटी. ये 9 सब्जेक्ट होते हैं आपके. तो 9 सब्जेक्ट्स में दे विल डिवाइड मार्क्स, 200 मार्क्स को डिवाइड करते और 100 क्वेश्चंस को चूज करते. सो पैटर्न विल बी ऑलमोस्ट सेम रहता है. इन सम एग्जामिनेशन पैटर्न एक जरा डिफरेंट, ये तो सेम रहता है. एप्टीट्यूड मल्टीपल चॉइस ही रहता है. तो एक सब एग्जाम्स में कुछ लाइक पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में तुम्हें ट्रांसलेशन मिलता है, तो 50 मार्क्स ट्रांसलेशन रहता है. इंग्लिश टू कन्नड़ ट्रांसलेट करना, कन्नड़ टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना, उसके बाद पैसेज लिखना कन्नड़ा में, तो वो रहता है 50 मार्क्स के लिए. बट जनरल स्टडीज का पैटर्न फॉर ऑल ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेट एंड सेंट्रल के लिए सेम रहता है. और सब में थोड़े बहुत एग्जाम्स में क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है. बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता. स्टेट हमारे कर्नाटक के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता. मोस्ट एग्जाम्स में, कुछ एग्जाम्स में लाइक बैंकिंग एग्जाम्स हो गया या फिर पंचायत एग्जाम्स, उसमें सब नेगेटिव मार्किंग्स रहता है. बट आफ्टर ऑल एक सिंपल 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस. अच्छा, मैक्सिमम एग्जाम्स में नेगेटिव करेक्शन तो रहता है, नेगेटिव वैल्यूएशन नहीं?
मैक्सिमम? मैक्सिमम नहीं रहता, थोड़े बहुत एग्जाम्स में रहता है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है? फॉर एग्जांपल अभी मैं एसएलसी पास हुआ हूँ या पीयूसी पास हुआ हूँ, नई डिग्री फाइनल ईयर में हूँ, इसका प्रिपरेशन कब से करना है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रोशनी डालेंगे तो इसका अच्छा। प्रिपरेशन जो है आफ्टर एसएलसी स्टार्ट किया तो बेहतर है। आप इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूपी बिहार में उधर एक ट्रेंड है, उधर के बहुत सारे लोग यूपी आउट ऑफ 1000 सीट्स में, 1000 सीट्स में 200-300 सीट सिर्फ यूपी बिहार के लोग ही लेते हैं यूपीएससी के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर एसएलसी वो अपने बच्चों को वो क्या करते हैं, वो फील्ड के लिए एकदम उनका माइंडसेट बना देते हैं। तो इंजीनियर नहीं बनना, तो डॉक्टर नहीं बनना, तो आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, तो आईएफएस ऑफिसर बनना करको एक डिसाइड करके उनको वो स्ट्रीम पढ़ाते हैं। अभी हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा कर्नाटका का, हमारा साउथ इंडिया का जो ट्रेंड है, वो हम लोग क्या करते हैं, डिग्री करते हैं, डिग्री में भी इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस या फिर ऐसा कुछ सीए का डिग्री करते हैं। उसके बाद हमें दिमाग में आता है कि हमें यूपीएससी करना, तो उसका टाइम बहुत सारा वक्त निकल जाता है। तो वक्त को बचाने के लिए, टाइम इज द मनी हियर, सो वक्त को बचाने के लिए आफ्टर एसएलसी उसका फाउंडेशन स्टार्ट कर देना है। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर को स्टार्ट कर देना है। लेटर ऑन विदाउट प्रॉपर कोचिंग, अगर किसी का, बहुत कम लोग हैं विदाउट कोचिंग, विदाउट ये उसका उनका लक किया, फिर उनका जो भी है उनका साथ दिया है। तो बहुत सारे, कई पर 100 बच्चे में एक या दो बच्चे विदाउट कोचिंग क्लियर किया है, वो बहुत रेयर है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सा, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द पैटर्न, सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं, और अब से 10-15 साल पहले क्या क्या क्वेश्चन, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट क्या पूछ रहे हैं, और फ्यूचर में क्या पूछ सकते हैं। तो इसका एनालिसिस करने के लिए यू नीड टू बी अंडर सम ट्रेनर। एक ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर आ गए तो दे विल मोड यू, आराम से क्या बोलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, देखो भाई ऐसा पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो अगर विदाउट ट्रेनिंग है तो वेरी रेयर, व्हाट आई हैव सीन इज आउट ऑफ 100 1 or 2% इज द सक्सेस रेशियो। तो वो लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी का सब लोग, दोस्त हु हैव क्लियर्ड, दे आर अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर चैनल, प्रॉपर शेड्यूल के साथ वो लोग गए हैं, देन ओनली दे हैव बिकम ऑफिसर्स एज ऑफ नाउ। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हमारी कम्युनिटी जो मुस्लिम्स, हम हमारी कम्युनिटी में हम बहुत जी, लेट स्टार्ट करते हैं। सही बात देखो, है। बच्चे अभी एसएलसी पढ़ रहा है, पीयूसी पढ़ रहा है, बाद में देखेंगे डिग्री कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो हमारा बेस्ट टाइम जो रहता है हमारा, जिसमें हमें मेहनत करना, वो वक्त निकल जाता है। जी, एसएलसी के सही बाद बात है। अगर इमीडिएट उन्होंने स्टार्ट कर लिए तो डिग्री के लेवल तक का उनका लेवल अलग होकर रहता है। अगर वो यूपीएससी या केपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टारगेट करके उन्होंने तैयारी कर रही है, तो उनको कितने साल मिलते हैं? उनको पीयू के एसएलसी के बाद, एसएलसी के बाद फर्स्ट पीयू 1 साल, सेकेंड पीयू 2 साल, उसके बाद डिग्री अगर कर रही तो 3 साल, 5 साल की 5 मेहनत। तो डेफिनेटली सी, अब हमारा एसएलसी हमें पास करना तो हमें 9 years मेहनत करती, फ्रॉम केजी, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 9th। ओके, एसएलसी पास करने के वास्ते। अब ये जो चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो तुम्हें रोजी देती है, मतलब प्रॉपर जब तुम्हारा करियर बनता है, वो एग्जाम्स को हमें ऐसा जाको ब्लंटली जाको हमें ऐसा जाको अपियर होती ना, तो देर इज नो मीनिंग इन दैट। सो mashallah, Abrar sir, whatever you have said, start in early stage is a very good option. Okay, so one more question from our participant, like for एक कैंडिडेट जिसका पीयूसी होकर है साइंस में, उन्होंने बीए को एडमिशन करा कर ही, मतलब जी, इससे नहीं, किससे मतलब रेगुलर नहीं, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी करस्पॉन्डेंस में डिग्री को उन्होंने एडमिशन करा कोई, उनको कहते भी इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, वो सिर्फ आपका डिग्री है। तो आपका अच्छा मौका है, अगर इफ यू आर स्टडिंग करस्पॉन्डिंगली, तो उसके साथ साथ पैरेलली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। उसके साथ ही आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को पढ़ने के लिए स्टार्ट कर लिया तो बहुत फायदा होता है। विद अल्हम्दुलिल्लाह, इन आई 2-3 थिंक ईयर्स दिस के इज, अंदर आपका डिग्री भी खत्म हो जाएगा। सॉरी टू जी जी, इंटरप्ट बोलो। यू, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन पीयू के बाद। अगर जो भी हमारा जी इंशाल्लाह ये वीडियो नेक्स्ट पास करती, जो भी देखती, मेरी राय आफ्टर पीयू करस्पॉन्डेंस टेकिंग एडमिशन, करस्पॉन्डेंस में एडमिशन करा को
डिग्री का, उन्होंने प्रॉपर एक 3 साल इसके ऊपर मेहनत करे तो 100% आउट ऑफ 3 इयर्स, एक साल तो उनका, एक साल विद इन 3 इयर्स उनका इंशाल्लाह कांति भी एक जगह प्लेस हो जाता है. सो माशाल्लाह, इट्स अ गुड, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच. और इसमें स्कोर कैसा, हाउ कैन वी स्कोर द मार्क्स इन दिस? कमिंग टू स्कोर, हमारे लिए विल बी हैविंग रिजर्वेशन रहती है हमने 2B और OBC कैटेगरी में, और रूरल रहा तो रूरल भी कैटेगरीज रहता है, उसमें हमने रिजर्वेशन से. फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट में 33% सीट्स वुमेन्स को देना, लड़कियों को देना कर को है, उसमें 33% में भी डिवाइड करी फॉर जनरल मेरिट इतना, फॉर 2B इतना, फॉर SC ST क्रिश्चियंस को इतना कर को डिवाइड कर को ही. वो छोड़ को फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स मेन के लिए 7% रिजर्वेशन है फॉर एवरी जॉब्स. बहुत सारे टाइम क्या होता है वहाँ पार्टिसिपेंट नहीं रहते, खाली जाती सीट्स, बट हमना मालूम ही नहीं चलता कि सीट्स थे, अप्लाई करते तो जॉब मिलता. हमें वो कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ दम हमें वो जो भी देखी स्टेट, हमारे गवर्नमेंट कर्नाटका स्टेट में तो बहुत सारे सीटें खाली खाली जाती. अगर हमें अवेयरनेस पैदा करें, आप अवेयरनेस हमारे अकाउंट के बच्चों के बीच में अवेयरनेस पैदा कर को हमें ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो इंशाल्लाह विथ मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स व्हाट वी हैव सीन इज 90 प्लस काढ़े तो 200 मार्क्स में 90 प्लस काढ़े तो ऑन कैटेगरी बेसिस जॉब्स और पक्का जॉब मिलने की संभावना और ग्राफ है अब तक का. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, अभी नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक चीज, अच्छा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेंगे. और एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. स्टूडेंट्स लेकिन अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, दे वांट अ ट्रेनिंग, आई मीन दे वांटेड टू गो टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, वो एग्जाम्स अपीयर होना चाहती, उनके लिए क्या कुछ कैसा ट्रेनिंग क्या तभी रेगुलर बेसिस को है क्या आपके पास, कुछ भी आप दे सकती क्या? जी. ऐसा कुछ निज़ाम आपके बनाकर हैं क्या, जो सिस्टम बनाकर हैं जिसमें SLC पढ़ते पढ़ते, SLC पास होने के बाद PUC करते करते या डिग्री करते करते उन्होंने एक डेली उनके जो भी उनका टाइम है उसमें 1 या 2 घंटे उन्होंने इसे ट्रेनिंग को लगा सकते हैं, ऐसा कुछ निज़ाम है आपके पास? जी, जैसा कि हम लोग कल मीटिंग कर रहे थे यूनिक एकेडमी में, उदयगिरी में जो है वो यूनिक एकेडमी में फ्रॉम समाज से वी आर स्टार्टिंग ए बैच फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हमारे बच्चों के लिए एक 7 to 9 मॉर्निंग 7 to 7 बजे से 9 बजे तक क्या कहते हैं बैच स्टार्ट कर रहे हैं. तो एवरी डे यू कैन, अगर आप कॉलेज पढ़ रहे हैं तो कॉलेज पढ़ते पढ़ते भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर काम कर रही तो काम करते करते भी ले सकते हैं. दिस इज फॉर KPSC एंड ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D एग्जाम्स, नॉट फॉर UPSC के लिए नहीं, KPSC. लेटर ऑन आफ्टर रमजान वी आर प्लानिंग टू ओपन बैच फॉर UPSC आल्सो. बट एज ऑफ नाउ मैं आई सजेस्ट कि आप जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, तो मॉर्निंग हमारा बैच है 7 to 9, तो आप सुबह 7 बजे ही आके ऑन द लोकेशन ऑन क्लास अटेंड कर सकते हैं. तो क्लासेस विल बी वेरी स्मूथ, वेरी इजी, और जितना हम लोग पढ़ाते उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा. उससे ज्यादा गाइड बुक, बड़े बड़े गाइड, बड़े बड़े बुक, बड़े बड़े मटेरियल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव एक्सपीरियंस. हमें वी हैव सेट मेनी, जैसा कि दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स हम सेट करके भेजते हैं, तो वी नो द हाउ व्हाट इज द माइंडसेट, हमें कौन से माइंडसेट से बच्चों को क्वेश्चंस पूछते हैं. वी हैव दैट. ओके, थैंक यू सो मच. अभी नेक्स्ट हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बचकर हैं सेशन खत्म होने के लिए. अच्छा, कौसर, यू हैव एनी क्वेरी, कैन यू प्लीज आस्क अब्रार सर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम, बोलो. सर, अब जो भी सर पूछते उससे रिलेटेड एक डाउट है. UPSC के वास्ते मैं भी एक लाइक सूट को बुक्स खरीदी सर, UPSC ट्राई करने के वास्ते BCom स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में. तो जब मैं बुक्स खरीदी तो एक एक्यूरेट आइडिया नहीं मिला सर, लाइक हमें कौन से टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन याद करना, तो मुझे मालूम नहीं था सर NCERTs लेना या स्पेक्ट्रम्स लेना,
लाइक कोसा होना ज्यादा यूज आता है। तो मैं सोची एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम्स में तो पूरा कॉम्बिनेशन रहता है ये एनसीईआरटी का, तो उससे ये स्पेक्ट्रम खरीद लेंगे करको मैं ले ली सर। जब मैं खोली तो मुझे कुछ भी लाइक 1% का भी आइडिया नहीं मिला सर। वो अच्छा, मैं अगर से मैं सोची बाद कोचिंग के वास्ते इंस्टीट्यूशंस जो भी रहती है उसे ज्वाइन हो ना, बहुत सारे लाइक आसान होता है लाइक सब कुछ समझना एंड ऑल। तो जब मैं गई तो वहाँ जाको जब इंक्वायरी करी तो वहाँ की फीस लाइक 80,000 1 लाख ऐसा 90,000 ऐसा पूछ लेते हैं सर। जी जी। तो हमें ये स्टार्टअप करते हैं सर, लेकिन हम लाइक कान से भी हेल्प नहीं होती सर, मदद नहीं होती। लाइक अब हमें एक साल के वास्ते तो होता था, हमें नहीं दे सकते सर। लाइक अब 90,000 1 लाख इतना सभी हमें लाइक 50 के अंदर है तो इट्स ओके सर, कैसा तभी मैनेज कर ले जा। लेकिन जब इतनी सारी सब फीस पूछती तो हमें लाइक 5 रत्ती लो हो जाती सर। इतना सब कुछ कैसा करने होता है। उसके वास्ते तो हमें है, उसके वास्ते हमें फ्री कोचिंग रहती है। हमारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है, वो 2-3 हजार रुपए रहता है आपका, उतना अच्छा हमारा फीस भी उतना अच्छा रहता है। तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना क्यों, वो इन रिटर्न हमें तुमने वो वापस कर डालती, उतना मटेरियल दे डालती। तो हमारा जो भी प्लान बन को है वो कौम की खिदमत करने है। ये हमें 1,20,000 उस जगह हम लोग भी पढ़ाने जाते हैं, जैसे कि मैसूर में हमें जाते हैं पढ़ाने। एवरीडे हमारा कोर्स क्लासेस रहता है वहाँ। 1,40,000 1,60,000 रुपए की फीस रहता है, बुक्स 13,000 प्लस जीएसटी वो सब रहता है, प्लस ट्रैवलिंग का भी रहता है। तो उसके लिए तो ये सिचुएशन को हम टैकल करने के लिए वी आर स्टार्टिंग, हमें स्टार्ट कर रहे हैं सो कि वो हम तुम्हें बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कौन से बुक्स की जरूरत नहीं है। जितना हमें क्लास कराते हैं, क्लास के अंदर जो लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं वो मोर देन एनफ है। उतना हम लोग बहुत सिंपल सिलेबस बना लिए। तो सब एग्जाम्स के लिए कॉमन सिलेबस रहेगा। तो मैं केपीएससी एग्जाम्स भी लिख सकते हैं इसमें, इसमें ग्रुप बी ग्रुप सी सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स रहते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स रहते हैं, उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। कॉमन सिलेबस बना लिया हमें। तो मैं एक जॉब नहीं तो दूसरा जॉब मिल जाना तुम्हारा, और वो सिलसिले वैसा हमें एक सिंपल पैटर्न बना ली, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर ली, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रही बच्चों को। तो तुम्हारा सिर्फ एम क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब लेना, हमें पीएचडी करना या फिर पढ़ को बुक्का लिखना ऑथर बनने की जरूरत नहीं है। खाली हमारा एम क्या, नीचे से ऊपर पावा कर डाले तो भी हम ना जॉब मिलना, गवर्नमेंट जॉब में हमें किसी भी हालत में जाना। तो इसके लिए हमें यू तुम्हें हमें पर्सनली मीट करो, सवा को तुम्हें क्लास में मीट करे तो हमें तुम्हें गाइड करते हैं। प्लस यू कैन टेक क्लासेस भी नहीं, ले I सकते हैं think तुम्हें। Kausar is from Bangalore. She's from Bangalore. Hmm? या सर, Right, Kausar, you are from Bangalore. Okay. या सर, या No सर, problem. No problem. हमें इंशाल्लाह एक निजाम बनाते हैं आपके लिए भी। ऑनलाइन क्लासेस। और एक चीज है सर, ये जो दूसरा नेक्स्ट लेवल, अब देखो हमें फोकस जिस फील्ड में करना वो नहीं कर रही है हमें। हमारा कम्युनिटी का क्या है कि तो बहुत दूसरी चीज हमें मेहनत करनी है हमें। जिस जगह पानी नहीं आता वहां खोद रही है हमें, जिस जगह पानी की जरूरत है उस जगह हमें नहीं खोद रही। सो ये लॉजिक, इसके वास्ते हमें ये है ना यूनिक फाउंडेशन से और हमारे अबरार सर से मिलको उनको रिक्वेस्ट कर को ये चीज दिले का ना। तो ये रीजन है कि आप जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहती हैं कि यूपीएससी क्रैक करे, केपीएससी क्रैक करे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करे, ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी का भी हो, ऐसे एग्जाम्स कैसे क्रैक करना है इसको सामने रखकर हम लोग ये क्या 2 घंटे का डेली जो सेशन रहता है आपका ट्रेनिंग का स्टार्ट करने की कोशिश किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बैच ऑलरेडी रनिंग में है। राइट अबरार सर, आपकी एक बैच जी जी ऑलरेडी रनिंग में है जिसमें 25 बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो रमजान में पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सहरी हम लोग ये सेशन चला रहे हैं, फ्रॉम 7 to 9 अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है सेशन। सो और एक चीज, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, which coaching center is best for UPSC or KPSC for poor students? Sir, please make one WhatsApp group, add us. Okay, fine, we will definitely make. Guys, please ping your numbers. Okay, please ping your numbers in the chat. Okay, so that we can add you in our group. We can help you out. Okay, okay, fine. We are running out of time. Any other quick questions, please? Afsana, who is this Afsana? The participant Afsana. आप इंट्रोड्यूस करो आपको। अफसाना, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कॉलिंग फ्रॉम, यू आर फ्रॉम कपड़ा से, कपड़ा डिस्ट्रिक्ट, हुबली।
Koppala, sir. Koppala. Okay. Welcome, Afsana. What's your full name, Afsana? Apsana, sir. It's an Afsana. Okay. You are what you are studying? क्या पढ़ रहे हैं आप? Degree first year, sir. अब डिग्री फर्स्ट ईयर, कौन सा डिग्री में, कौन सा बीकॉम बीए कौन सा? BA, sir. BA. Very good. Okay, Ali, can you introduce yourself, please? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कॉलेज में वर्क किया सर। आप वर्क कर रहे हैं आप? हाँ सर, जीपीएस टेर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर। जीपीएस टेर है ना सर? अच्छा, जीपी? हाँ सर, जीपीएस टेर सर, स्कूल सर 6 to 8। ओके, फाइन। आप कहाँ से हैं? आप कोप्पल सर, कोप्पल। ओके, फाइन, थैंक यू। ओके गाइस, इंशाल्लाह हाँ, अभी एक 2 मिनट की बाकी ही सो। देखो, ये असल इसका मकसद, ये जो जूम आज मीटिंग कॉल कर रहे थे, इंशाल्लाह आप आपके ग्रुप्स में भी इसको सर्कुलेट करो। इंशाल्लाह हमें आपके नंबर्स अगर चैट में अगर पिंग कर डाले तो इंशाल्लाह हमें आपको जो भी नेक्स्ट डिटेल रहता है इंशाल्लाह आपको शेयर करते हैं। आपका जिसमें मैं भी रहता हूँ ग्रुप में और हमारे अबरार सर भी रहती हैं। आपके जो भी क्वारीज ही इंशाल्लाह आपको हेल्प करती है। Abrar sir, can you please tell your number so that students can note it down? I'll message में आपको डाल रहा हूँ। चैट में आप मैसेज कर दो और let them note it down। अच्छा, देखो आप सब अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हुए, देखो एक फिक्र के साथ ज्वाइन हुए हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक मकसद बना के आपको मेहनत करना है। ओके, देखो असल हमारी अब तक की जो लाइफ गुजरी, हम लोग पीयू किए हैं, एसएलसी किए हैं या डिग्री किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कैसा हमने डिग्री कर लिए, कैसा पीयू कर लिए, कैसा एसएलसी पास हो गए, लेकिन इसके बाद तक भी हमें क्या करना, फोकस करना कि हमारा करियर कैसे बनाना। देखो आज आप आपका डिग्री भी होकर है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नाउमीद होने की और मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप 1 साल भी इंशाल्लाह आप कंसंट्रेट कर दिए तो इंशाल्लाह 100% आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं अबरार सर से बोलता हूँ कि आप ब्रीफ आप कंक्लूड कर दें so that we can wind up this Zoom meeting। जी, वो सिलसिले में आप कोप्पल से हैं तो अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास भी दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी रहेगा द सेम टाइमिंग्स, तो यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। लैपटॉप रहेगा और आपको क्लियर वीडियो और ऑडियो के यू कैन आस्क क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं वो टाइम पर। तो आप अगर फ्री हैं तो एवरी मॉर्निंग 7 to 9 PM 7 to 9 AM क्लासेस लेके तो फायदा उठा सकते हैं इसके लिए। तो बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर कर्नाटका, वी हैव स्टूडेंट्स उन्होंने जो क्लासेस ले रहे हैं, तो वो सिलसिले में यू कैन आल्सो ज्वाइन। अच्छा, प्लीज ये नंबर नोट डाउन कर लो आप, 9482744083 9482744083। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग अभी कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमारा अभी टाइम आउट हो रहा है मीटिंग का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। रमजान करीम। आप सबको रमजान की बरकत और अनवार सब चीज़ आपको अल्लाह ताला प्रोवाइड करें। इसी के साथ आप दूसरों को भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हैव अ नाइस फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू अबरार सर। थैंक यू गाइस। टेक केयर।